હવે રેકોર્ડિંગ ચાલુ થયું દીદી. હા દીદી. પણ દીદી ટ્રાયો ગ્રુપમાં વિડીયો નથી. જી હા, હેમલતા દીદી આવી ગયા. હેમલતા દીદી તમે આવ્યા ને હું તમને હેરાન કરું. ગેસ્ટ પછી પેલા મારા મેન્ટર બની જાઓ. શું પ્રોબ્લેમ છે બતાવો. હાઉ કેન આઈ હેલ્પ યુ? શેર ઓકે નથી દીદી. દીદી એક દીદી જ હું મિનિટ. સ્ક્રીન તમને શેર પોસ્ટ કરું છું બનાવી ને તો રીઇન્સ્ટોલ કર્યું એમાં મારે એલાઉ કરવાનું રહી ગયું હશે બધું. રેકોર્ડિંગ ઇન પ્રોસેસ છે, રેકોર્ડિંગ થાય છે તમારું. રેકોર્ડિંગ નથી કહેતી, સ્ક્રીન શેર. મોબાઈલમાંથી સ્ક્રીન શેર કરું છું ને. હા, સૌથી નીચે જઈને ઝૂમ ને અલાઉ કરો. અલાઉ તમને બધા એપ્સ દેખાતા હશે. સૌથી નીચે તમે જાઓ, ઝૂમ ને અલાઉ કરો, પછી તમને શેરિંગ આપશે. ડિનેટ લખેલું છે એમાં દીદી. હા હા કરેક્ટ. એના તમે સૌથી નીચે જાઓ, સ્ક્રોલ કરો ડાઉન. સ્ક્રોલ ડાઉન સૌથી નીચે તમે ઝૂમ એપ લાવશે, ઝૂમ એપ મળશે. ઝૂમ એપ ને તમે અલાઉ કરો. દેખાય છે દીદી? દીદી મેં અલાઉ શેર કરો કર્યું. પછી સ્ટાર્ટિંગ કરો, પછી તમે સ્ક્રીન શેરિંગ કરો. અચ્છા, પહેલા સ્ક્રીન શેર સ્ટોપ કરો. ડિનાઇડ આવે છે ને, મારી વાત સાંભળો. જી દીદી. ડિનાઇડ આવે છે ને, એના નીચે બધા એપ્સ આવશે. એપ્સ માં સૌથી ઝેડ માં તમને ઝૂમ આવશે. ઝૂમ ને ત્યાં અલાઉ કરો. ઝૂમ નો ઉપર ક્લિક કરો અને અલાઉ કરો એને. દેખાયું? ઝૂમ દેખાયું તમને? જી દીદી. હા, અલાઉ કરો એને. થઈ ગયું. હા, હવે સ્ક્રીન શેરિંગ કરો. આવ્યું? જી દીદી. મેં તમને આજે ના છોડ્યા દીદી. हमारा तुम्हारा साथ है ऐसा. ऐसा मैं हमेशा आपको परेशानी करती रहूंगी. नहीं नहीं, परेशानी की बात नहीं, ये तो हेल्पिंग हैंड होता है और वही सेवा का भाव है. ऐसा इंग्लिश में कहावत है, वी ग्रो बाय राइजिंग अदर्स. जब हम दूसरों को ऊंचा उठाते हैं ना, तो हम खुद भी ऊंचा उठते हैं. जी दीदी. अच्छा, दीप प्रज्वलन बाकी है ना, दीप प्रज्वलन दे दीजिए. करैरिन्दोरन्तश्छुरितैव सम्भिन्नं पुनः विधत्तां सिद्धिन्नो नयनसुभगामस्य सदसः प्रकीर्णः पुष्पाणां हरिचरणयोरञ्जलिरयम् शरदिन्दुनिभां शुभ्रां शुभ्रवस्त्रैरलङ्कृतां कलहं सकृतासां वरदां शारदां नमः. वरदां शारदां नमः. शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिर्विनाशाय दीपज्योति नमोऽस्तु ते. दीपो ज्योति परं ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हर्तु मे पापं सन्ध्यादीप. સરસ સોનલ દીદી. આપણી વચ્ચે હેમલતા દીદી છે, એમનું સ્વાગત છે. હેમલતા દીદી આપનું. હેમલતા દીદીનું જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા મેન્ટર છે, જીસી મેન્ટર છે, અને ત્યારથી હું એમને હેરાન જ કરું છું. અને મારો ખૂબ સાથ સહકાર આપ્યો છે દીદીએ. મારા હસબન્ડનું ઓપરેશન હતું ત્યારે બી મેં એમને બહુ હેરાન કર્યા છે. હેમલતા દીદી વિશે કહું તો હેમલતા દીદી પુણેથી છે અને ટેક્સાસ બોમ્બે યુનિવર્સિટીમાંથી માસ્ટર કર્યું છે અને ગીતા પરિવારમાં 2021 જાન્યુઆરીથી જોડાયા છે અને માર્ચ 2021 થી ટીએ ની સેવા આપે છે અને જીસીની સેવા બી આપે છે અને મેન્ટર છે, ટેક મેનેજમેન્ટ ટીમમાં છે, ટેક ટ્રેનિંગ ગ્રુપ મેન્ટર છે, ટેક મોનિટરિંગ મેમ્બર છે, જીસી મોનિટરિંગ કરે છે અને
બીસી ની સેવા બી આપે છે અને જીસી મેનેજમેન્ટ ટીમના બી મેમ્બર છે. ઘણી બધી સેવાઓ આપે છે દીદી. અને એની ટાઈમ આપણે જ્યારે કોલ કરીએ ત્યારે દીદી અડધી રાત્રે સવારમાં 5 વાગે મેસેજ કર્યો હોય ને તો એનો તરત જવાબ આવી જાય છે. આપનું સ્વાગત છે દીદી. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ નીતાબા. અને હેરાન એ શબ્દ ખોટો છે તમારો અહીંયા. તમે અમને યાદ કર્યા અને આપણે એકબીજાની મદદ કરીને આપણે આગળ વધીએ છીએ. આ કાર્ય ભગવાનનું કાર્યમાં આપણે સહયોગ આપ્યો છે અને આપણે સૌભાગ્ય છે કે ભગવાને આપણે સેવાના માટે પણ આપણે સિલેક્ટ કર્યું છે. ઇટ ઇઝ વેરી ગુડ થિંગ કે અમને સાધકથી અમને સેવાનો રૂપ અમને મળ્યું અને અમે સરસ રીતે सेवा आप ही चुके थे. डोंट माइंड तो मैं थोड़ा हिंदी में बोलती हूँ, इतना मुझे गुजराती नहीं आता है बिकॉज आई डोंट चलेगा बिलोंग दीदी, टू गुजरात. चलेगा तो क्या दीदी, चलेगा. अभी नीता बा दीदी ने कहा कि मैंने सबसे पहले टेक असिस्टेंट की सेवा ली, फिर मैंने जीसी की सेवा ली, फिर मैंने बीसी की ली. फिर जैसे जैसे मैं सीनियर होती गई तो मैं उनके मेंटोर बनती गई. मैंने उनको ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया, नए टेक्स को, नए जीसीस को, और बीसी का कार्य कैसे करना चाहिए, मैनेजमेंट की मीटिंग्स कैसे लेनी चाहिए. इसमें मैंने मेरा कदम आगे बढ़ाया. तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि भगवान ने मुझे इसके लिए काबिल समझा और ये मेरी झोली में ये सेवाएं आई. तो आप सभी से अनुरोध मुझे यही कहना है कि यही 24 घंटे हमारे कल थे, यही 24 घंटे हमारे आज भी है. जब गीता परिवार नहीं था तो हम इसी 24 घंटे को टीवी देखने में या फेसबुक देखने में, व्हाट्सएप देखने में, इसमें गवाते. टिप्स एंड टिप्स देते हैं कि आपको कैसे इस चीज को याद करनी है, कंठस्थीकरण कैसे करना है. और हमें कंठस्थीकरण पे जोर इसीलिए देना है कि जो संस्कार हम जन्मों जन्म हमारे साथ लेके चल सकते हैं उस पे हमें जोर देना है. आज हम शुद्ध उच्चारण सीख चुके हैं. L1 में आपने 3 सीख लिए, L2 में आपने कुछ अध्याय सीख लिए, तो आपके 6 अध्याय, 6 से ऊपर आपके कुछ अध्याय हो गए हैं. तो क्यों ना अब हम थोड़ा अच्छे से गाना सीख रहे. पहले दिन तो हमें कुछ नहीं आता था कि कैसे संस्कृत पढ़ेंगे, कैसे गीता जी का पठन करेंगे. लेकिन बड़े ही सुंदरता से यहाँ पे आपने देखा कि गीता परिवार में इतना सुंदर जो 4 चरण के वाइज आपको सिखाते हैं. तो आज आपको थोड़ा थोड़ा बोलना आ गया है, शुद्ध उच्चारण आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत आपको ग्रामर भी समझ में आ रहे हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस ग्रामर के हो रहे, विवेचन में जाके आपको उसका अर्थ समझ में आ रहा है. तो आज हम आत्मा, ये हम आत्मा है, शरीर को लेके मत चलिए, हम आत्मा है. और हम आत्मा मनुष्य जीवन में इसलिए आए हैं कि हम हमारे आत्मा का कल्याण करें, हम हमारा जीवन की प्रकृति को और बेटर बेटर हम लोग करें. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे. हो सकता उतना हम अध्याय को कंठस्थीकरण की तरफ लेकर जाएंगे, उसको याद करेंगे. तो हमारी मृत्यु के बाद भी जो हमने भगवान का नाम याद किया है, जो गीता जी के श्लोक हमने याद किए हैं, वो जन्मों जन्म हमारे साथ चलने वाले हैं. ये जो भी मटेरियल वर्ल्ड है, जो हम जमा करके रखते इतनी पूंजी, वो हमारे साथ नहीं चलेगी. हाँ, लेकिन ये जो भगवान के श्लोक से, ये जो अध्याय हम कंठस्थीकरण से याद करेंगे, ये हमारे साथ जन्मों जन्म चलने वाले हैं. तो इसीलिए मैं सभी से यही अनुरोध करूंगी कि अब आपका L2 हो चुका है. अब आपको संस्कृत कैसे पढ़ी जाती है, कैसे गीता जी के श्लोक पठन किए जाते हैं, कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, कैसे सोलो ऑडियो आती है, कैसे अनुपठन वीडियो आता है, और कैसे हमें प्रैक्टिस करना चाहिए. तो अब आप उसको याद करने की कोशिश कीजिए, मेमोराइजेशन करने की कोशिश कीजिए. उसके लिए भी स्पेशल बैचेस है. उसके लिए लिंक ये है, के कंठस्थीकरण क्लासेस के लिए के लिखना है, .लर्न गीता. हम क्या सीख रहे हैं, गीता जी सीख रहे हैं. तो learngita.com, इस वेबसाइट पे आप जाके अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कंठस्थीकरण क्लासेस में. वहां आपको 12वां अध्याय, 15वां अध्याय, 16वां अध्याय कैसे याद करना है. बस मैंडेटरी ये है कि उन्होंने बोला 3 श्लोक याद करके आने हैं, तो आपको याद करके ही आने हैं. आपको आंख बंद करके अगर बोला जाए तो आपको वो 3 श्लोक, बोले हेमलता दीदी 3 श्लोक गाने हैं, कल जो पढ़ा है वो 3 श्लोक आपको आज पढ़ने हैं. जैसे दीदी आपको को ट्रेनर दीदी आपकी रिवीजन लेती है ना स्टार्टिंग में, 3 श्लोक का रिवीजन, बिल्कुल उसी तरह से वो रिवीजन के टाइम पे आपको मेमोराइज करके आने हैं वो 3 श्लोक. और आपको वहां पे कुछ सिखाया नहीं जाता है, सिर्फ आपसे पठन कराया जाता है, आंख बंद करके मेमोराइज किया जाता है, याद किया जाता है. वो क्लासेस होते हैं कंठस्थीकरण के क्लासेस. तो सभी से अनुरोध है कि कंठस्थीकरण क्लासेस ज्वाइन कीजिए. और थोड़ा सा समय आपके पास अगर और हो तो उसको व्यर्थ में मत जाइए, कोई ना कोई सेवा में लगाइए. तो जो साधक से जब सेवक बनोगे ना, आपको क्या क्या अनुभूति मिलेगी मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ.
आपका जीवन भी बदलेगा, आपका व्यवसाय बदलेगा, आपके रिश्ते बदलेंगे, आपका क्या बोलते हैं, मेडिसिन, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स है, हेल्थ इश्यूज है, वो इम्प्रूवमेंट में आएगी। और कोई पढ़ाई लिखाई में अपने बच्चे कमजोर है या कुछ नहीं कर पाते हैं, तो जो इम्पॉसिबल चीज है ना, वो खुद आई एम पॉसिबल बन जाएगी। ये आराधना, ये साधना का फल आपको जरूर मिलता है यहाँ पे, क्योंकि साक्षात गीता जी भगवान की श्लोकों की वाणी है। और जब उसका पठन करते हैं तो भगवान का भरपूर आशीर्वाद हमारे साथ चलता है, और हम सभी सौभाग्यशाली है। और मेरे लिए हमारे जो साधक इस आनंद महोत्सव में जुड़े हैं, वही प्रमुख अतिथिगण हैं। हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं यहाँ पे, लेकिन बिना साधक के हमारे गीता जी के क्लासेस में हम क्या करेंगे आके। तो हमारे प्रथम अतिथिगण हमारे साधक ही है। तो आप सबके चरणों में मेरा वंदन है, आप सबको मेरा जय श्री कृष्ण और प्रणाम है। और सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं L3 के लिए। बड़ी ही सुंदरता से आपने L1 L2 कंप्लीट किया है, अब L3 की तरफ जाएंगे। तो थोड़ा अब आपको बेसिक समझ में आ गया है, तो अब आप अपना फाइन ट्यूनिंग की तरफ बढ़ेंगे। तो रोज पठन कीजिए, रोज 12वां अध्याय पढ़िए, रोज 15वां अध्याय पढ़िए। आपकी जीवा को ना आदत डालिए संस्कृत के श्लोकों की, ताकि जब आप पढ़े ना तो आपको कुछ नया नया नहीं लगे। तो 12वां अध्याय पढ़िए, 15वां पढ़िए, 16वां पढ़िए, फिर जो जो अध्याय अपने सीखे ना आगे बढ़ते जाइए, प्रैक्टिस में रखिए। सोलो ऑडियो लगा दीजिए, सामने PDF रखिए, बस पढ़ते जाइए, यहाँ पे सुनिए, यहाँ पे पढ़िए। इस तरह से आप कंठस्थीकरण की तरफ जाइए। बस मेरा हमेशा जोर आपका कंठस्थीकरण पे इसलिए है, क्योंकि ये चीज हमारे साथ जन्मों जन्म हमारे साथ रहेगी। और हमारे जो अगला जन्म है वो अच्छा रहेगा, और हमें और अच्छी गति और अच्छी जीवन, हमें जीवनशीला मिलेगी। यही भगवान के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि सभी को भगवान भरपूर आशीर्वाद प्रदान करे। और सभी का जीवन में अगर कोई भी कठिनाई आई हो या कोई भी मुश्किल आई है, तो भगवान उसको हल करे। हम भगवान के शरण में हैं, और भगवान का उसके लिए तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू नित्यबा दीदी, आपने मुझे इनवाइट किया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा आप सबसे मिलके यहाँ पे आगे। अल्पा दीदी ने भी बहुत अच्छी सुंदरता से क्लासेस ली हुई है। दोनों ही हमारे फैकल्टी मेंबर्स ने पूरा समय यहाँ पे जो अपना अमूल्य समय निकाल के आपकी सेवा में यहाँ पे उपस्थित रहे हैं, तो फैकल्टी मेंबर्स को बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। और जय श्री कृष्ण सभी को, ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, थैंक यू दीदी। જય શ્રી કૃષ્ણ હેમલતા દીદી, તમે અમારા दीदी આનંદોત્સવમાં स्पॉटलाइट આવ્યા। कैंसिल कर दीजिए, जी कैंसिल ही रखिए, तो जो भी स्पीकर होगा ना वो ऑटोमेटिक जी दिखाई दीदी, देगा हाँ स्क्रीन पे। किसी को स्पॉटलाइट देने की जरूरत ही नहीं। और ખૂબ ખૂબ नीताबा दीदी के बारे में आपको एक बात कहती हूँ, जब उन्होंने GC की ट्रेनिंग ली थी, फर्स्ट टाइम जब L1 के GC बने थे, तो जैसे ही सेवा ली, तो उनके हस्बैंड का कुछ ऑपरेशन आया था, तो उनको ICU में एडमिट करना पड़ा। तो दीदी ICU में रह के पतिदेव की सेवा करते करते उन्होंने अपना एज अ GC, वो रोज क्लास में जाना, 10 बजे की उन्होंने टाइमिंग फिर 10 बजे का लिया, रात का 10 बजे का, ताकि दिनचर्या का समय जो हमारे संसार में हम रहते हैं, तो हम व्यस्त रहते हैं दिनचर्या में। तो दीदी ने रात का 10 बजे का समय लिया, और अपनी जो उनसे बनता था, जितना बनता था, उन्होंने पूरी कोशिश की है। और आज भगवान की दया से आज उनके हस्बैंड ICU से बाहर है, स्वस्थ है, मस्त है, और जॉब पे भी जाने लग गए हैं। तो ये कृपा दृष्टि है सेवा की। जैसे ही दीदी सेवा में जुड़े, तो उनके हस्बैंड को ऑपरेशन का भी उनका हो गया, अच्छे से ऑपरेशन हुआ, आज वो हेल्थ में फिट है। L1 से L2 बोल तो ज्यादा नहीं, 1 महीने का फर्क हुआ रहेगा दीदी, 1 महीना 1.5 महीना हुआ रहेगा नीताबा दीदी। 3 महीना भैया को हुआ ऑपरेशन हो दीदी, गए, 3 महीना हुआ। 3 महीने हो गए हैं। ओके, हाँ हाँ, तो दीदी। दीदी ने मार्च में L1 की सेवा स्टार्ट की थी। तो मार्च में ना दीदी, हाँ, तो मार्च अप्रैल मई और जून, तो देखिए आज वो स्वस्थ हैं और बिल्कुल जॉब जाते हैं। तो ये भगवान की कृपा दृष्टि है। और ICU में ऑपरेट होते हुए वो एज अ GC की तरह क्लास में आते थे। ये बहुत बड़ी बात है कि भाई 10 मिनट मेरी कमिटमेंट है सेवा का, तो दीदी आना करना, और कभी कुछ मुश्किल होने पे मैं आती थी उनके लिए। बाकी दीदी टाइमली जाना, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हुए कमिटेड रहना सेवा में, ये बहुत बड़ी बात होती है। वो बोलते हैं ना, हम कुछ ले तो लेते, लेकिन उसको निभाना बहुत बड़ी बात होती है। तो नीताबा दीदी ने बहुत ही सुंदरता से निभाया था। तो उनके सेवा भाव को नमन है। और जय श्री कृष्ण। तो सभी के लिए एक इंस्पिरेशन रोल है। देखिए आप आपके सामने ही बैठे हैं, आपके टेक असिस्टेंट, आज वो टेक की सेवा भी करते, GC की सेवा भी करते। तो जो समय उनको मिला है और जो सेवा में उनको आनंद आता है, तो उन्होंने उठाया। और कुछ भी नहीं आता रहता है, वो बोलो कि मैं बोलूं, कुछ भी नहीं आता है,
लेकिन गीता परिवार इतना कुछ ट्रेनिंग में हमको सिखा देते हैं कि हम सुंदरता से कर पाते हैं। तो कोई निश्चिंत रहिए ये चीज के लिए। आप बिल्कुल अगर कोई सेवा लेते हो तो आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है और आप बहुत सुंदरता से बहुत सारी चीजें सीखते 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 स्टेप बाय स्टेप उसमें उत्तीर्ण हो जाते हो। तो चलिए कुछ साधक को सुनेंगे उनके मनोगत वगैरह। थोड़ा 10 मिनट और हूँ क्लास में। जी दीदी, थैंक यू। ખૂબ ખૂબ जय ધન્યવાદ श्री कृष्ण। હેમલતા દીદી। વિમ્પા દીદી આવી ગયા शिल्पा છે। दीदी, जय વિમ્પા श्री દીદી कृष्ण। આપણી जी સાથે दीदी। ગેસ્ટ છે આભાર વિધિ તમે સંભાળી લો। बहुत ही सुंदर आपने आपका वर्चुअल बैकग्राउंड बनाया है, रखा है भगवान जी की सुंदर छवि। अल्पा जी दीदी, वर्चुअल जी। बैकग्राउंड बहुत ही सुंदर रखा है, भगवान जी का ધન્યવાદ दर्शन, દીદી, ધન્યવાद। मन વિમ્પા को દીदी। मोह वाला दर्शन है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बताने खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू सो मच हेमलता दीदी। बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन था आपका। और ये सही बात है कि हमारे साथ जो सेवा में जुड़ जाते हैं वो तो जैसे कृष्ण कृपा ही है, कैसे न कैसे वो हमसे सेवा करवा ही लेते हैं और उनकी ही मर्जी जी होती है कि हम सेवा कर सकते दीदी, हैं। आपका वीडियो जैसे बंद है नीता क्या? दीदी कौन सी भी कोई विजय, विम्पा दीदी आपका वीडियो बंद है? हाँ जी जी। वीडियो जी बंद जय है श्री शायद। कृष्ण। हाँ, जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच। बस आप और थोड़ा मनोगत और पार्टिसिपेंट्स को सुनिए। और 10 मिनट है शायद मीटिंग खत्म होने में, तब तक आप जी जी, रहिए और हो सके सभी तो नेक्स्ट रिज्वाइन मीटिंग में करेंगे भी जैसे ज्वाइन ही करें। जूम लिंक खत्म हो जाएगी तो सभी रिज्वाइन कीजिएगा। जी। भगवती दीदी आप जी ગણેશ જી સ્તોત્રમ દીદી, લેજો। ના મારું તો મનોગત હતું દીદી। તમે ગણેશ। मनोगति अच्छा, हाँ सुनना है हाँ मेरे को, बोलिए बोलिए। हाँ हाँ। दीदी सीता दीदी। अशिता। हाँ हाँ सीता हाँ दीदी सॉरी લઈ લો। हाँ हाँ कृष्ण। जय મારે श्री ભૂલ कृष्ण લખવામાં दीदी। ભૂલ થઈ। हाँ। सॉरी। नारद उवाच प्रणम्य शीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यमायुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरमं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्ण तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं प्रभो विद्यार्थिं लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यं श्रलिखित्वाय समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादत इति श्री नारद पुराणे संकटनाशम गणपति स्तोत्रम संपूर्णम। જય શ્રી કૃષ્ણ। ખૂબ સરસ દીદી। આપણી વચ્ચે ભાવના દીદી છે। ભાવના દીદી જય શ્રી કૃષ્ણ। આપણા બીસી છે ભાવના દીદી, એટલે આપણા પરિવારના જ છે। જી દીદી। आप जी आप બે શબ્દ બોલશો ભાવના દીદી? दीदी हमारे बीच में हमारे चीजें हेमलता दीदी भी हमारे साथ में है, तो पहले हम हेमलता दीदी का स्वागत करते हैं, फिर बाद में हम लोग जी बोलेंगे। हेमलता हाँ, दीदी। बोल हेमलता दे। दीदी 15-20 मिनट से हमारे साथ है। मैं लेट हो गई। जी जी जय श्री दीदी। कृष्ण भावना दीदी, जय श्री कृष्ण दीदी। आपकी घर क्लास में ही आपका स्वागत है। दीदी हम सबकी क्लास में हम सबका स्वागत है। जी दीदी। जी दीदी भावना दीदी आप जी मैं कुछ सभी बोलिए। साधकों जी मैं सभी साधकों को सबसे पहले L4 में आने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जैसे हमने L1 में हमें डर लग रहा था कि हम कैसे सीखेंगे, संस्कृत है ये और हम कैसे बोल पाएंगे। आज जैसे हमारी माँ हमें बोलना सिखाती है, हमारे सिद्धि दीदी नीतिभा दीदी ने अपने आपको इतने शुद्ध उच्चारण से आपको गीता के श्लोक सिखाए
और उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि आपने ये गलत बोला, उन्होंने यही बोला कि इसको ऐसे बोलते हैं। तो इसी सेवा भाव के लिए दीदी आपका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन, सेवा भाव को नमन दीदी। और मैं जो हमारी अल्पा दीदी की भी हमारी सीटी दीदी है, नीतिवा दीदी तो हमारे टेक है बिल्कुल से। और अल्पा दीदी को मैं ऐसे जानती हूँ, अल्पा दीदी आपको ध्यान है, आपको बुक के लिए आपने मुझसे पूछा था बहुत पहले, 2 साल पहले, कि गीता परिवार की बुक वो कहाँ से मंगवाई थी, आप मुझे वो लिंक भेजो। आपका मैसेज अभी भी मेरे पास रखा हुआ है। तो जी, धन्यवाद दीदी। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री जो मैंने नितिभा दीदी को बोला वो सब मैं अल्पा दीदी को समर्पित करती हूँ, क्योंकि अल्पा दीदी को ट्रेनर है, मैंने नितिभा दीदी को ट्रेनर बना दिया था। और दीदी आपकी सेवा भाव को नमन। और जो हमारे टैग दीदी है नितिभा दीदी, वो बिल्कुल ऐसा काम करते हैं जैसे हमें बहुत सुंदर इमारत तो दिखती है, और इमारत इतनी सुंदर होती है, हम उसकी सुंदरता को देखते हैं और उसको देखने भी जाते हैं, पर उसके जो नींव का पत्थर होता है वो उसको कोई भी नहीं देखता है। तो नितिभा दीदी का बिल्कुल वही काम है, नींव का पत्थर है, अनाम उत्सर्ग है कि अपने टिपटाप से काम करना, टाइम से जाना। और वो नींव का पत्थर भी नहीं होगा तो वो मीटिंग भी नहीं शुरू हो सकती और बिल्डिंग भी नहीं खड़ी हो सकती। तो नीतिवा दीदी आपका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन इतनी अच्छी क्लास चलाने के लिए। विपा दीदी है, हाँ जी दीदी। विपा दीदी, जी विपा दीदी। दीदी जी जी आपको वीडियो ऑन, आज आपको वीडियो ऑन ही रखना है दीदी। जी दीदी, जी दीदी। ऐसा है ना कहीं नेटवर्क इश्यू आ जाता है तो फिर ऑफ रखती हूँ, जरूरत होती है तभी ऑन कर लेती हूँ। थैंक यू बहुत ही सो मच दीदी। स्पॉन्टेनियस, इतना स्पॉन्टेनियसली दीदी करती है कि देखिए बहुत अच्छा लगता है जो सेवा दीदी देती है। जहाँ कम वहाँ हम वाली जो कहावत है दीदी बिल्कुल सही फिट होती है दीदी। आपकी सेवा को आभार और अभिनंदन। मैं सभी साधक को यही कहना खूब खूब चाहूंगी कि धन्यवाद दीदी, बहुत। मैं सभी साथियों को यही कहना जी जी जी। चाहूंगी कि अभी हम एल्कोहल में आ गए हैं और अभी 22 तारीख से हमारा एल्कोहल शुरू होगा, तो अभी बीच में थोड़े से समय है हमारे पास, थोड़ा सा समय अभी भी है और हमेशा भी है। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आप एक चैप्टर, अभी हमारे 12 चैप्टर हो गए, 12, 15, 16, 14, 17, 9 जो भी चैप्टर हुए हैं, 12 चैप्टर हमारे हो गए। रोज एक चैप्टर आपको अध्ययन करना है, रोज एक चैप्टर। आज 12 किया, कल 15वां करेंगे, फिर 17वां करेंगे, 16वां, ऐसे ही लगातार कंटिन्यूसली 12 चैप्टर आपको 12 दिन में हो जाएंगे। और ये नियम बनाना है, ऐसा नहीं कि आज 2 बजे कर लिया, कल 4 बजे कर लिया, सुबह 11 बजे कर लिया, 10 बजे कर लिया, नहीं। जो नियम से हम काम करते हैं वो बिल्कुल प्रतिबद्धता से और अच्छे से होता है। तो हमें वो नियम से काम करना है। और नियम बना लीजिए कि मैं सुबह उठते ही पढ़ूंगी, या मैं नाश्ता तभी करूंगी जब मैंने आज एक चैप्टर, एक अध्याय का अध्ययन कर लिया, या मैं रात को सोते समय अध्ययन करूंगी। मैं ये एक आपको नियम बनाना होगा। उससे ये होगा कि जैसे हमें गाने सीखने नहीं पड़ते, हम गुनगुनाने लग जाते हैं, वैसे ही अब हमारे मुंह से गीता के जो हमारे श्लोक है, एक एक कृष्ण की वाणी है, वो हमारे मुंह से निकलेगी। ये इससे सुंदर और क्या हो सकता है। तो आप सब ये जरूर से करिएगा। जरूर हेमलता दीदी ने सेवा देने के लिए जरूर से बोला होगा, तो मैं उतना उसमें नहीं कह सकती। मैं आपको इतना ही कहूंगी कि आओ गीता सेवी बने 11 तारीख को जो हमारा प्रोग्राम है, आप जरूर से देखिए। आओ गीता सेवी प्रोग्राम। लिम्बा दीदी एक बार आप म्यूट कर लीजिए, आपकी ऊपर से माइक नॉइस कर रहा है। तो आओ गीता सेवी प्रोग्राम 11 तारीख को है, आप जरूर से देखिए। उसमें आपको लगता है कोई ना कोई सेवा आप दे सकते हैं। देखिए सेवा देने के लिए पैसे तो हमारे पास है, हम डोनेशन करना किसी को भी हम आसानी से कर सकते हैं। 500 रुपये दे दिया, 1000 दे दिए, 2000 दे दिए, पैसा देना आसान है। पर जो समय नहीं है हमारे पास, आजकल सभी व्यस्त हैं, तो समय देना मुश्किल है। तो कृष्णा को हम भाव दे सकते हैं, समय से दे सकते हैं। तो वही चीज देना कृष्णा को, जो चीज हमें मुश्किल लगती है। पैसा तो कोई भी दे सकता है, आप 10 रुपये भी दे दीजिए, 11 रुपये भी दे दीजिए, दान करना आसान है। पर सेवा का भाव होना और समय होना, तो समय की कमी रहती है सभी के पास, वही समय हमें गीता परिवार को देना है, कैसे भी निकाल के। तो आपके पास 2 चीजें, एक तो समय और एक सेवा का भाव। अगर सेवा का भाव नहीं है तो आपका समय कुछ भी काम नहीं होगा। दोनों चीजें आपके पास है तो आपका गीता परिवार में स्वागत है। हम भी ऐसे ही सीखने आए थे, हमें लगा कि हमें यहाँ पे कुछ देना चाहिए, पर पता चला कि ये तो हमारी गलतफहमी थी। हम सेवा करते हुए भी सीख रहे हैं, ये हम कह रहे हैं कि हम सेवा दे रहे हैं, नहीं, हम अभी भी सीख ही रहे हैं सेवा करते हुए। तो यो कृष्ण कृपा हम सब पे हुई है, उसका हम सम्मान करते हैं। और गीता परिवार को जितना भी धन्यवाद बोला जाए उतना कम है। उन्होंने हम सबको
एक लाइन दी जो गीता हमारी किताबों में आलू में रखी रहती थी, बंद रहती थी, आज हम उसको खोल के पढ़ते हैं और उनको इतना शुद्ध उच्चारण करते हैं। तो उसके लिए हम उनके हमेशा ऋणी रहेंगे, वो ऋण हम नहीं चुका सकेंगे। आप सब ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ દીદી. આજે આનંદોત્સવમાં આવી અને સાધકોને માર્ગદર્શન આપવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જી દીદી, હવે 1 મિનિટ જ બાકી છે, તો હું મીટિંગ એન્ડ કરીને ફરીથી સ્ટાર્ટ કરું છું. બધા ફરીથી જોડાજો. એક જ મિનિટ બાકી છે, તો આગળ કશું નહીં થાય. હું ફરીથી કરું છું મીટિંગ. હા, બધા ફરીથી હા. જોડાજો. અરે દીદી, આપણે જેટલા L1 થી L3 માં જેટલા આપણે અધ્યાય પૂરા કર્યા એના નંબર મેં મેસેજ તો મૂક્યો જ, પણ એક ખાલી જસ્ટ એટલું લખી આપો ને. ગ્રુપમાં મૂકી દઈશ, હું ગ્રુપમાં હા. મૂકી દઈશ દીદી. ઓકે, હા. જય શ્રી કૃષ્ણ દીદી. અને મારે થોડું કામ છે એટલે હું સેકન્ડ મીટિંગ જોઈન નહીં કરી શકું, સોરી.